अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद रईस जैदी और आज आपको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ये सेशन लेके आए हैं और टॉपिक है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, इट्स इम्पैक्ट एंड रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके। और इसके लिए जो हमारे साथ स्पीकर्स हैं आज, मेजर रिटायर्ड अली, वो एक इंटरनेशनली रिनोन ट्रेनर हैं, वो हैं, और उनको के साथ को ट्रेनर हमारी होंगी मारिया फरोख। ये प्रॉक्सिमो ग्रुप के साथ मिलके हम ये सेशन चला रहे हैं और मैं अब वेलकम करता हूँ मारिया को और अली को अपने सेशन में। लेट मी call them to the session. Assalamu alaikum Ali, welcome to the show. और I know you are in traveling today और आप हम इस टाइम पे लाइव जा चुके हैं। अली, योर माइक इज म्यूट राइट नाउ, अब अनम्यूट हो गया, ठीक है। और मैं मारिया को भी ऑनलाइन ले लेता हूँ अपने साथ ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। मारिया, वेलकम टू द शो। Thank you. वी आर ऑन एंड लाइव राइट नाउ और इस टाइम हम तीनों मैं आपका इंट्रोडक्शन ब्रीफली करा चुका हूँ अली और मारिया, लेकिन आई वुड लाइक अली टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड मारिया you also do the same afterwards, please. Very right. Thank you so much. Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Syed Ali. I am the trainer with Proximo Trainer Private Limited and consultant. So this training जो हम deliver कर रहे हैं, we are delivering very quality and relevant and credible kind of courses, and we are providing the consultancies from last 10 years to different countries, to different organizations. In past, before COVID, we were very grateful to Almighty Allah that we have provided an international course for 5 different countries. Participants from the 5 different countries, they came to Pakistan, they came to Islamabad, and we delivered the 2 courses. One was armored vehicle driving safety course, and the second was 4x off-road driving safety course. So I will now regarding this topic, एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज कोविड के अंदर काफ़ी सारी कोविड वायरस सिचुएशन के अंदर भी मिस circle in our environment at the global level. So we prepared a topic that is a misinformation and its impact and the mitigation measures we should take. So ये टॉपिक ऑलरेडी पाकिस्तान लेवल पे चला चुके हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी चला चुके हैं और इसकी काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन है. और with me is Maria Farokh. Mashallah, she has done wonderful in the past also with us as a co-trainer. So now I will request Maria to take over the session, and definitely we both are available for any question answer sessions, or later Maria at the end of the session will share our contact numbers, और in future if you feel like कि आप लोगों को कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, we are available then. So please Maria, you take over now. Thank you so much. Okay. Assalamu alaikum everyone. I hope I'm loud and clear. My name is Maria Farokh, and I'm a teacher by profession, but I'm linked with Proximo trainers from the last 7 years. और मैं इनकी को ट्रेनर के तौर पे पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ. माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. Women in this field, it's usually a very difficult and very unique experience for me. लोग समझते हैं कि ख़वातीन इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती, but अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे कॉलीग्स हैं उनका मेरे अंदर बहुत अच्छा ट्रस्ट है और ये है कि इस टॉपिक के ऊपर हमारा काफ़ी ग्रुप है. So I think it's going to be an informative session today. Okay, Maria, can you
share your screen right now. अपनी presentation किस तरीके से आप लेके चलेंगे? Yes. We have on, you are on up, और I can see your screen. देख सकते हैं आपकी पहली slide. ठीक है. So as you can all see, the topic for today is misinformation, managing in fake news basically. आजकल के दौर में जो है ये मीडिया का दौर है, इसमें information, misinformation, disinformation, and fake news. How to differentiate between news and fake news जो है वो एक बहुत ही मुश्किल किस्म का मरहला है, और it is not easy these days कि आप differentiate कर सकें. Just a minute. Yes. So let me just turn on my slideshow format. Okay, so I hope my slide is clear. Yes, your slide is clear. अगर आप इसको स्लाइड शो पे चली जाएं तो मच क्लियरर हो जाएगी. जी, just a minute. I am just a minute. Actually, मैं इसको स्लाइड शो पे कर देती हूँ. I'm actually trying to open it with Google Slides, but unfortunately I cannot. Google Slide नहीं, PowerPoint की slide show नीचे जो click होता है उस पे you can go from there. It's actually opening. Okay. Yes, we can see it. थोड़ा सा वो छोटा कर लीजिए. चलिए 1 minute. Okay. Just a minute. That's it. ठीक है. Okay. Yes. So to begin with, आजकल जो है झूठ बोलना झूठ जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करता है instead of a truthfulness. And it is more easier for people to actually buy something that is a lie, that is more closer to what they are thinking. So, to differentiate between this misinformation and all the fake news nowadays, it has become very difficult. So, why isn't it? Sorry, I'm having some technical difficulties with this. Okay. So the part 1 of our today's session is going to be about misinformation, related definitions and examples. Since we cannot have group discussions and comments over here, so we'll leave and we'll be very open to your comments after the session. Then in part 2, we are going to discuss the targets, the methods, and the purpose of all this misinformation, why this misinformation is being spread these days, how these are made, and how we can easily identify them. Then the group discussions and comments once again. And then in part 3, what we should do at our level and future topics and comments, concluding remarks from the group members and everything. So this misinformation and fake news these days, I'd like to start it with a quotation from Mark Twain. And he said that a lie can travel halfway around the world while the truth is putting on the shoes. So if we tell a lie, it is going to, spread around the world like a wildfire. जंगल की आग की तरह से वो झूठ जो है, आपकी misinformation जो है, वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल जाएगी और पहुंच जाएगी. जबकि एक बंदा जो खड़ा सच बोलता रहेगा, उसका सच शायद एक फोन से दूसरे फोन तक ना जाए. So the kind of or the types of misinformation that are available to us. To begin with, हमारे पास सबसे पहले है fake news. Fake news, propaganda and disinformation. उसमें हमने differentiate करना होता है कि partially true क्या चीज़ें हैं और manipulated facts क्या हैं. The facts and figures जिनको manipulate करके हम तक पहुंचाया जा रहा है. Then एक और उसकी किस्म है जिसको कहेंगे rumors,
एक और चीज़ है कंस्पिरेसी थ्योरी का वर्ड हम हर तरफ सुनते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज अ कंस्पिरेसी बेसिकली। देन होक्स न्यूज़, एक फ्ली छोड़ दी जाती है, एक खबर मशहूर कर दी जाती है और लोग उसके ऊपर फौरन रिएक्ट करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो झूठी खबर थी। सो इन चीज़ों को हम किस तरह से रोक सकते हैं, अपनी ज़िंदगी इन चीज़ों से पाक कर सकते हैं, स्पेशली ये जो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फील्ड है उसमें ये मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें कि जो न्यूज़ हमारे पास आई है उसमें से कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी र्यूमर है, कौन सी कंस्पिरेसी है और कौन सी होक्स न्यूज़ है। Myths भी हैं, converting into a concept or mind भी, it is one of the things. Then, I hope my screen is clear. यहाँ पे we can all see a picture of our Prime Minister. We can see it clearly. Don't worry. बिल्कुल ठीक आ रहा है. Thank you so much. So, misinformation to begin with. So, false or inaccurate information with the intentions to deceive someone. किसी को धोखा देना, किसी के ख्यालात को चेंज करना, किसी की ओपिनियन को चेंज करने के लिए आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. So, as we can all see कि इन दोनों पिक्चर्स में एक तस्वीर में हमारे प्राइम मिनिस्टर को फेमस इंडियन क्रिकेटर सिद्धू के साथ बैठे हुए दिखाया गया है. ये हमारी बहुत ही फेमस जो करतारपुर चैनल की ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड मिस्टर सिद्धू they were both sitting together. So in one of the pictures वहाँ पे इमरान खान साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने सिख टर्बन में दिखाया है सॉलिडारिटी शो करने के लिए सिद्धू साहब के साथ. लेकिन ऑन द अदर हैंड द रियलिटी ऑफ द फैक्ट वाज कि वो असल में एक सफ़ेद कपड़ा अपने सर पर बांध कर बैठे हुए थे और इस सारी चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो ये जो फोटोशॉप करके और इसको प्रेजेंट एक फॉल्स पिक्चर पेश करने की कोशिश की गई. एंड इट इज़ अ वेरी relevant example that the Prime Minister of Pakistan was shown with the Sikh turban on social media, whereas the fact was, the reality of the matter was that he was putting on a head cover to show his solidarity because जो religious जगह होती हैं वहाँ पे आपको सर कवर करके बैठना पड़ता है. So एक छोटी सी example है to begin with. Let's just move on. Now, a few more definitions. What is a fake news? A news with sensations created for widely sharing with the purpose of generating revenue or promoting or discrediting a public figure, a political event or movement, a company or a product, etc. Now, you can all see that in this picture down there, the fake picture is that's what it was shown in the social media, that an Italian journalist is giving dog food to the US Secretary of State, whereas the reality was that Italian journalist was actually giving a cheese-packed cheese का एक slice जो है वो Italian journalist जो है वो present कर रही थी US Secretary of State को in protest for US tariffs जो कि उन्होंने European goods के ऊपर लगाए थे. So, अब आप देखें कि अगर ये एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, उनको डिसरिस्पेक्ट शो करने के लिए between the two countries or between the two nations, and it is very easy to do these days. Moving on, another information, disinformation. False information which is intended to mislead, especially propaganda issued by a government against enemy or another country, or जो है usually within जो government जो anti state agents होते हैं वो भी government के against propaganda use करने के लिए या जो है हमारी opposition जो है वो government की और government जो है वो opposition के against इस किस्म की disinformation जो है वो create करती है. For instance, हमारे पास एक सबसे recent example है कि in 2003 Iraq was subjected with weapons of mass destruction. ये फैलाई गई अफवाह कि जी weapons of mass destruction है इराक में, लिहाजा we have all the rights to attack on Iraq. Whereas the fact came out in 2016 where Mr. Tony Blair, the Prime Minister of UK, in 2003, he accepted his failure of intelligence agencies
saying that there were no weapons of mass destruction. But हमने सब ने देखा कि इस disinformation का फ़ायदा किसने उठाया, इसका नुकसान किसको हुआ, और at the end of the day जो है वो कितनी ज़्यादा तबाही हुई, कितने बड़े लेवल के ऊपर तबाही हुई इन सब चीज़ों की. Now, misinformation and disinformation. We believe media channels are highly accurate in making the news, whereas ये हर दफ़ा सही नहीं होता. We have video here. Okay. So misinformation on managing fake news. हम इस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि मिसइन्फॉर्मेशन और ये जो फेक न्यूज़ हम तक पहुंचाई जा रही हैं इनको हम किस तरह से इनके बीच में डिफरेंशिएट करें, हम इनको किस तरह से जो है सच और झूठ में फ़र्क हम किस तरह से पता करें. So according to World Health Organization, its DG said in an international security conference that we are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic. Now, in this corona epidemic season, it was more of an infodemic, and everyone was trying to spread fake news, and misinformation was ruling almost all social media forums hai, and everyone was trying to be an expert in all this. So who are the targets and what is the misinformation that can be spread? Let's just look at that. Now, the targets are basically the people, the masses, awam, hum log. So it is very easy to make people to think or make them believe, कि जो कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ सच है. Whereas we all should know कि हकीकत इसके बरक्स होती भी है और हो भी सकती है. The society with ethnic or social gaps are the best places for this misinformation and fake news. Now, where the misinformation can be spread, this is very important. It's very easy to spread wherever it's credible or reliable information is not available. So एक आम बंदा जो गांव में बैठा है, जो देहात में बैठा है, जो सुबह उठा है, उसने अपनी वर्कशॉप खोली है, दुकान पे बैठा है, जॉब पे जा रहा है, a security guard who wants to know what is happening around in his city or what is happening around in the country, or for instance, people are curious to know what is happening in their surroundings. So it is very easy nowadays. You open up your mobile, you go to Instagram, you go to Facebook, and you go to all of the social media apps and you look for information. And what people do not know is that there is more misinformation, there is more disinformation rather than credible or reliable news. And what happens is that it is very easy to spread in people having less knowledge. It's not just that के less knowledge से मतलब हम यहाँ पे कम पढ़े लिखे, नहीं, ऐसा नहीं है. अब बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो हैं अभी इस कोरोना एपिडेमिक के दिनों में एक जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी कि जी इट्स जस्ट अ होएक्स, ये सब झूठी खबरें हैं, एंड दिस कोरोना डज नॉट एग्जिस्ट, एंड it took people a lot of time to actually realize that it was a pandemic. ये एक पूरी दुनिया का मसला था, ये एक आलमी मसला था, और इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन इस चीज से रिलेटेड नहीं फैलाई गई थी. Okay, so what is the purpose of misinformation and why is it shared? अब हमारे ज़हनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठ रहे होंगे आप लोगों को इस वक्त कि जी ये हमें कैसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये हमें क्यों बताया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई जाती है और फेक न्यूज़ क्यों फैलाई जाती है, उसका मकसद क्या है. सो टू बिगिन विद, आप सबसे बड़ा देखें मकसद जो है टू मेक फन. ये जो आजकल एक हमने ट्रेंड देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि मीम्स बन रहे हैं, मेक फन, ह्यूमर, the use of humor or to make fun, to ridicule or criticize people or a matter or a decision. Now this is really spreading like wildfire. हम लोग बैठे बैठे मजाक में अब दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, मीम्स बना रहे हैं, और अब इनोसेंट लोगों की इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी पगड़ियां उछाल रहे हैं, without realizing the impact of all this misinformation, this disinformation, all the fake news, all these rumors spreading about people. एक sensation जो एक सनसनी हम फैला देते हैं,
किसी के भी बारे में इसको और इसको फिर हम हंसी मजाक और तंजो मजाक की रूप दे रहे हैं कि जी कितनी फनी तरीके से ये बात कही गई है। ये एक बहुत सीरियस किस्म का मसला है जिसको आई थिंक हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। देन टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन, ये सबसे बड़ी आजकल के दौर की हम इसको कह सकते हैं कि हमारा अलमिया है कि पब्लिक ओपिनियन, हर बंदा चाहता है कि अवाम की राय हमारे साथ हो, अवाम जो है वो हमारी बात को सुने, हमें तवज्जो दे और बस हमारी बात को अहमियत मिले और जो इन्फॉर्मेशन हम फैलाते हैं उसको जो है वो सुने। सो डिसीविंग मैसेज, लोगों को धोखा देना, लोगों को बरगलाना, लोगों को लोगों के जहनों पे अपना जो है वो नुक्ता नज़र उसको मुसल्लत करना। आई थिंक आजकल ये जो हमारे टॉक शोज़ हैं, ये जो हमारे शोज़ डिफरेंट किस्म के शोज़ हैं और ये जो हम डिफरेंट किस्म की पोस्ट देख रहे होते हैं, चाहे उसमें वीडियोस हैं, लोग अपने मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और उनकी जहनियत को चेंज, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप ऑल दिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना आजकल का इस सोशल मीडिया का जो है वो सबसे बड़ा टारगेट है। Then to make revenue, of course, everything in this world is being done for money. पैसा पैसा और पैसा। So ये सनसनी, ये फेक न्यूज़, ये जितनी पोस्ट हैं, आप उस पोस्ट को जितनी दफ़ा देखेंगे, लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, तो जो ये फैलाने वाले हैं उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उनको फाइनेंशियल गेन्स हैं, उनके पैसे, उनका चैनल, उनकी न्यूज़, उनकी पोस्ट की सनसनी जो है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो ये जो प्रिंट मीडिया है, whether it's any kind of TV channel, whether it's any other thing, तो ये जनाब हाथों हाथ आपकी स्टोरी, आपकी सनसनी जो आप फैला रहे हैं वो बिक रही है। और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारे जो है माशरती इक़दार, ये इसके ऊपर आई थिंक ये एक और टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में और इस फेक न्यूज़ के दौर में। So the actual purpose of making this misinformation is known to the originator, but we can assess or guess the purpose or the motive of all this is those who have created the fake information is कि वो लोगों में सनसनी, खौफ, नफरत जो है वो उनमें मिले जुले तासुरात फैलाना चाहते हैं और एक जो है ना हम आगे की जो फ़ज़ा होती है उसको और सुकून को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है। देन मेथड्स ऑफ मेकिंग मिस इन्फॉर्मेशन, पोस्ट्स हैं जिस तरह मैंने अभी पहले आपको बताया, देन रिटन टेक्स्ट है, जोक्स हैं, कोई भी झूठा किस्सा सुना दे कि जी मेरे साथ ये वाकया पेश आया, लोग उसको करके उसलाना शुरू कर देते हैं। पिक्चर्स, फोटोशॉप, ये तो एक मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा मेनेस है आजकल के दौर में कि ये जो पिक्चर्स इंस्टेंटली फोटोशॉप हो रही हैं, काले को गोरा कर दो, गोरे को काला कर दो, इंग्लिश वीडियो को अरबी में कर दो और अरबी को फारसी में कर दो और उसको हिंदी में कर दो और उसको उर्दू में कर दो, एंड देन वीडियोज एंड एनिमेशन, चाहे जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी वीडियोज, एनिमेशन, क्लिप्स के जरिए, छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए उनके जहनों में जो है वो एक बात बिठाई जा रही है, उनके ऊपर एक नुक्ता नज़र जो है उसको मुसल्लत किया जा रहा है। सो ये हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आज हम अपनी इस प्रेजेंटेशन में हम अपने सेशन में कवर कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजिंग फेक न्यूज़। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये दो तस्वीर है। अब इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह लगेगा कि जिस तरह कोई छोटी छोटी पर्चियां या कागज के टुकड़े जो हैं वो गलियों में फैलाए गए हैं। और इस तस्वीर के साथ जो है अब कोरोना के टाइम में एक कैप्शन आई सोशल मीडिया के ऊपर कि पीपल इन इटली आर थ्रोइंग मनी और स्ट्रीट्स as they believe that it is completely useless, the money is completely useless during this COVID-19 situation. जबकि ये असल पिक्चर जो है इट वाज टेकन इन वेनेजुएला, एक साउथ अमेरिकन कंट्री जो है वेनेजुएला, वहाँ पे ये तस्वीर ली गई जहाँ पर जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई, उनकी करेंसी डीवैल्यू हुई, तो लोगों ने एज अ प्रोटेस्ट वहाँ पे अपनी करेंसी, अपना पैसा जाके सड़कों पे फेंक दिया। और उस तस्वीर को अब रिसेंट के कोरोना के टाइम्स में जो इटली जो कि वर्स्ट हिट कंट्री थी, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और कहा गया कि जी इटली में तो लोगों ने अपनी जो करेंसी है वो सड़कों पे फेंकनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा है कि जी बस कोरोना से दुनिया खत्म हो गई है और ये एक सनसनीखेज सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। देन सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ आई
कि जो है सिंगापुर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका टेस्ट हुआ है और वो जो है वो पॉजिटिव आए हैं, whereas reportedly he has been tested positive, whereas the fact was कि सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल ने कंफर्म किया कि ये जो मेमो, एक रिसीट जो सोशल मीडिया के ऊपर शो हो रही थी रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस सिंगापुर, मिस्टर ली हिन सिंह, कि जी वो टेस्टेड पॉजिटिव आए हैं कोरोना के लिए, इट वाज एन एंटायरली फेक न्यूज़ टू बिगिन विद। सो इस किस्म की ये जो है खबरें, ये और ये जो हम आपको एग्जांपल्स इसीलिए अपने मुल्क से कोट नहीं कर रहे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा एक ट्रेंड बैठ गया है कि हम अपने आप को और अपनी नेशन को और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं। सो हमारा इस ट्रेनिंग का मकसद आप लोगों को ये बताना, अवेयरनेस देना है कि इट्स नॉट जस्ट लोकली, it's internationally, it's an international trend what is going on, this misinformation thing, and it's, you know, it's becoming one of the biggest challenges nowadays for the government and all the organizations. Then another part, another example of this misinformation or fake news का था कि डेली टेलीग्राफ में उन्होंने कहा कि जी smokers are 4 times less likely to contract COVID-19. And this was a report that was published in The Telegraph, which is a very famous newspaper in the UK. Whereas उन्होंने ये कहा था, जो असल न्यूज़ थी वो ये थी, उन्होंने कहा था कि जी जो COVID-19 है वो स्मोकर्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी, and they also stated the reason why COVID-19 would hit the smokers really hard other than the people who are non-smokers. सो क्रेडिबिलिटी अब लोग जो हैं वो जाहिरी बात है टेलीग्राफ जितने बड़े एक फोरम को एक्सेप्ट करेंगे और उसकी बात को ज़्यादा सुनेंगे, एंड इवेंचुअली दे वुड कीप ऑन कैरिंग ऑन दिस menace of smoking, thinking that it is actually going to be beneficial for us, whereas the facts were really opposite to all this news and information. Now coming to this misinformation, हमारे अपने मुल्क में ये जो सिर्फ आपको स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रोजाना की एक एक्सरसाइज बन गई है। इसने हमारी पाकिस्तानियों को और कुछ नहीं तो कम से कम लाइन में तमीज से खड़े होना सिखा दिया, वरना हम पाकिस्तानी जो हैं वो लाइन लगाने से या लाइन में लगने से यूजुअली कतराते हैं। सो मिस इन्फॉर्मेशन, अब आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीर में ये न्यूज़ 18 फरवरी को न्यूज़ स्प्रेड की गई और लोग भाग के फ्यूल पंप्स के ऊपर गए। ये जो तस्वीर ली गई है ये 18 फरवरी की है कि जी पीपल रश टू फ्यूल पंप्स टू फिल देयर टैंक्स अंडर पॉसिबल फ्यूल शॉर्टेज। अब ये हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि अचानक बैठे बैठे एक शगुफा छोड़ दिया जाता है, एक फेक न्यूज़ छोड़ दी जाती है कि जी ये पेट्रोल की किल्लत हो गई, आटे की किल्लत हो गई, चीनी की किल्लत हो गई, और जो है लोग भाग के ज़ख़ीरा करने लग जाते हैं और घरों में राशन करने लग जाते हैं, गाड़ियों के टैंक्स फ्यूल करवाने लग जाते हैं, फुल करवाने लग जाते हैं। और इसी खबर की तरदीद जो है इसकी जो है वो 19 फरवरी को पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने, PSO ने, उन्होंने कंफर्म किया कि दे हैड सफिशिएंट फ्यूल रिजर्व्स और कोई पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दर हकीकत ये जो हमारे एंटी स्टेट एजेंसीज, अब एजेंट्स जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें ताकतें काम कर रही हैं, या जो हमारे मुल्क को तरक्की करते हुए या लोगों को पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हुए जो एलिमेंट्स नहीं देख सकते, वो इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैला देती हैं। अब लेट्स सी कि इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। सो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा टू मेक रेवेन्यू, के पैसे जनरेट होंगे, लोग भागम भाग जो है वो पेट्रोल पंप्स पे रश लग जाएगा और लोग जाएंगे और वो चाहे उन्हें ज़रूरत होगी या नहीं होगी वो जाके रिफ्यूलिंग करवाना शुरू कर देंगे। टू डिफेम PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, विच इज़ अ नेशनल आवर नेशनल ऑयल कंपनी। देन डिफेमिंग द गवर्नमेंट की नाकामी, उसके फेलियर को शो करना कि जी देखिए हमारी हुकूमत जो है वो कितनी नाकाम है और जो है एक पेट्रोल की किल्लत की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसी तरह से पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों के जहनों में खौफ व हिरास बिठा देना, उनमें एक जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट कर देना कि पता नहीं क्या बनेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम दफ्तर कैसे जाएंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, और अगर पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी तो बाकी सारी चीज़ों की भी ऑटोमेटिकली या शॉर्टेज हो जाएगी या उनकी प्राइसेस
बढ़ जाएंगी, एंड देन पैनिक अमंग द पब्लिक, ऑब्वियसली लोग पैनिक करेंगे और भागेंगे। और अगर हम नोट करें तो दर हकीकत ऑफिशियल स्टैंड को किसी ने भी नहीं लिया। नो वन एक्चुअली नोटिस्ड कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाई गई है या ये जो खबर आई है, क्या ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी, किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से आई है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से आई है। जबकि अगर हम हकीकत को देखें तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल इज़ एन ऑथेंटिक कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ से उन्होंने इस खबर की तरदीद की। तो इससे हमें पता चलता है दीज आर अ फ्यू मेथड्स to differentiate between a fake news, a hoax, a rumor and a real news के ground realities क्या है। So बहुत दफ़ा हम पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इन फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंस जाते हैं। Okay, now here's another example of misinformation at an organizational level, at a company level. इसमें आपको दो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक तस्वीर में जो स्टाफ ने शेयर की अपने सिक्योरिटी हेड से, उसमें उन्होंने दिखाया कि जी कार्स इस तरह से पार्क्ड हैं कि देयर आर नो कार्स पार्क्ड एट द फ्रंट साइड। ये कोविड लॉकडाउन के बीच में a few when the government imposed lockdown, and it included the suspension of work from private companies, so a company was still working with reduced staff. So obviously the staff members, they had to come on their own vehicles and they had to park the vehicles. तो माशाल्लाह फोटोशॉप के इतने आजकल फ़ायदे हो गए हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ था उन्होंने फोटोशॉप करके जो ऊपर वाली पिक्चर शेयर की अपने सिक्योरिटी हेड के साथ, उसमें उन्होंने फोटोशॉप करके गाड़ियां सारी गायब कर दी। Whereas जो सिक्योरिटी लोअर सिक्योरिटी स्टाफ था, जो नीचे वाली तस्वीर है जिसमें कि आपको गाड़ियां और बाइक्स वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं, वो शेयर की गई थी सिक्योरिटी स्टाफ के थ्रू। सो उन्होंने अपने हेड को इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने ट्रू पिक्चर शो की कि दिस इज व्हाट और हाउ मेनी कार्स और हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल हैव एक्चुअली showed up to their office, and they have actually parked the cars at the front side of their office instead of the back side. Now we all know that during this COVID season, the government SOPs were very strict about working timings and the organizations working and calling in their staff members, and there was a very big threat. So reduced staff के साथ भी जो है वो at certain times जो है permission नहीं granted थी by the government. So this is a common example. So staff ने जो है, जो staff members थे, उन्होंने क्या पिक्चर पेश की और सिक्योरिटी ने आपके पास जो थी ट्रू पिक्चर, वो गार्ड्स ने क्या शेयर की अपने सिक्योरिटी हेड को। So this Photoshop और this this picture taking, ये जो हमारा सोशल मीडिया है या जो ये हमारे पास आजकल फैसिलिटीज़ हैं कि हर बंदा खड़े हुए कहीं से भी कोई भी तस्वीर किसी भी एंगल से लेके आपको भेज सकता है। तो वो जो बात है, एक हम कहावत सुनते हैं कि तस्वीर के दो रुख, तो यहाँ पे आपको तस्वीर के दो रुख जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई है। सो द सिक्योरिटी शेयर द अदर पिक्चर, और जहाँ पे असल नंबर ऑफ पिक्चर्स और जो सिक्योरिटी स्टाफ था, जो सिक्योरिटी हेड थे, उनको क्लियर हुआ कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो चल रही है। Now, as a security professional, what should we do? Now, the people who are working, who have to deal with this, who have to write security reports, who have to, write security SOPs or make sure that their staff is safe in a proper place or not. So, to begin with, they simply cannot ignore the misinformation because now it is their duty, it is their job, and it is, part of their, job description to extract information, क्योंकि उस misinformation में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई information छुपी हुई होती है. So to analyze what type of misinformation they have to perceive और उसकी जो credible effects हैं अपने ऑफिस के ऊपर, अपने work environment के ऊपर, अपनी organization के लिए, वो उनको उसके लिए अपनी abilities जो है उसको utilize करना पड़ता है. Critical thinking, critical analysis जो है वो बहुत, that is very important. Then to find out the groups, the staff members who spread the misinformation, उन काली भेड़ों को identify करना वैसे तो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, हर बंदा ज़बान का बहुत मीठा है और आपको नहीं पता चलेगा कि वो कौन से लोग हैं, but even then you need to make sure that you go to the grassroots level
and you need to make sure that you are, you have enough qualities, you have enough capabilities to go to the root cause. आप उस root cause तक पहुंचे कि misinformation कौन फैला रहा है, कहाँ से आ रही है, किसने शुरू की है. अगर कोई rumor spread हुई है आपके organization में, कोई और fake news आ रही है, कोई misinformation आ रही है, तो वो कहाँ से start हो रही है? What is the starting point of it? This is extremely important as a security professional for you to identify that what is the root cause or what is the source of that information. Then the means for spreading the misinformation. Now, WhatsApp groups or the social media groups or Facebook or, any meeting or any other, आजकल तो व्यू बहुत आसान हो गया, आप एक ग्रुप के अंदर एक चीज़ भेजते हैं और वो फिर आगे से मिनटों सेकंडों के अंदर फैल जाती है और स्प्रेड हो जाती है. So you need to make sure that if it's sort of a misinformation, if you're not clear about it, you need to make sure to stop it there and then, and you need to convey this thing openly to your colleagues कि अगर ये misinformation है, until the time it is not confirmed whether it's a misinformation, it's a hoax news, it's a rumor, it should not be spread around. Then appoint someone for verifying the information. Then आपको कोई ना कोई आपके sources होने चाहिए, आपके इर्द गिर्द लोग जो मौजूद होने चाहिए, उसमें आपको अपने लोगों के ऊपर जो है आपको कुछ लोगों के ऊपर आपको भरोसा करते हुए उनसे इंफॉर्मेशन निकलवानी आनी चाहिए कि आपको पता चले कि असल बात क्या है. आपको बात की तह तक, उस मामले की तह तक पहुंचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Then another thing is that you need to talk to your staff and provide the facts for their correction. So once you are clear that this was misinformation, there was disinformation, there was rumor, it was a fake news, or it was a hoax just to create, sort of tension and, uncertainty in people. So you need to make sure to convey the right news. आपको लोगों को, अपने staff members को, अपनी organization में, you need to convey it clearly and properly to them, the real facts and figures about that situation, about that news and about that rumor. So it is very important कि आप उस चीज़ की explanation दें, आप उसको, and then a very important factor, please discourage the share of misinformation. Without, आजकल के दौर में, it is very easy to believe, but I remember one of my friends who was a law student, she told me कि उन्हें लॉ में ये बताया जाता है एज अ लॉ स्टूडेंट कि आंखों देखी चीज़ के ऊपर भी बिलीव ना करें एंड ट्राई टू लुक आउट फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो द सेम गोज फॉर अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल. जिस तरह एक वकील को तमाम हकायक और दलाइल और उसको तमाम पहलू जो है उस केस के सामने रखने पड़ते हैं, सिमिलरली अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, he or she has a lot of responsibility on their shoulders. So they need to make sure that they need to discourage people about spreading these fake news, this misinformation and this disinformation. And then misinformation and managing this fake news, we all need your help. Our email address is it's on the screens, it's shared on the screens for you, info@proximo.com.pk. Proximo is a safety and security training company. We deliver safety and security trainings. We have, mashallah, successfully delivered a number of safety and security trainings to a number of very reputable organizations within the country and internationally as well. On the screen, we are sharing with you the number of the kind of courses. Most of our courses, rather almost all of our courses, are tailor-made. They're specifically designed for that organization. We have successfully run defensive driving course, evasive driving course, 4x4 wheel off-road driving course. Then we also do earthquake safety courses, anti-kidnapping courses, anti-robbery courses, security management courses, then crime scene management courses, and security consultancy services as well. And there are a few pictorial, evidences of our very successfully run trainings, internationally, locally and internationally. And mashallah, we have been able to, promote this safety and security, the concept of safety and security, not just, within the country, within Pakistan, globally as well. And alhamdulillah, we are really proud of our services. So I think
बड़ा खूबसूरत सेशन था मरिया, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर की हमारे साथ अपनी प्रेजेंटेशन में हेल्पफुल रहेगी। बल्कि इनफैक्ट दो पिक्चर्स मैं खुद उसको का विटनेस हूँ। एक वो आपने इटालियन प्राइम मिनिस्टर को वो डॉग बोन देते हुए वाला एग्जांपल यूज किया, and honestly I have shared that clip with certain friends. मेरे पास कहीं से आई, मैंने फॉरवर्ड कर दी। अब you have made me feel guilty over there कि I didn't check it and I forwarded it। और ये मतलब है इट्स जो है आपने जो वो बताया, इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि वो इतना रियल क्लिप था कि उसमें उसको जिस तरह पिक्चराइज किया था, तो मैं तो उसको बिल्कुल रियल समझा था। मैंने कहा यार ये इंसिडेंट हुआ है, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड इट। तो हाउ मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड कि इतना रियलिस्टिकली उसको एडिट किया गया था मेरा ख्याल में कि वो अच्छा दूसरी एग्जांपल जो आपने शेयर की इटली वाली, आई न्यू दैट वो वाली पिक्चर जो थी ना वो अर्जेंटीना की और इटली की जो आपने कंपैरिजन की पिक्चर यूज की, आई हैव सीन दैट ऑल्सो। और मैंने मतलब उसमें अपने फ्रेंड जिसने शेयर किया था, मैंने कहा यार ये वेनेजुएला की पिक्चर है, ये तो उन्होंने फेंके थे, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने नोट फेंके थे इत्तेफाक से वो पिक्चर मैंने पहले देखी हुई थी। दैट वाज द रीजन, अदरवाइज वो मैं उसको भी बाय कर लेता। लेकिन कॉमन यूजर जो एंड यूजर है, हाउ इट्स वेरी मैं उसको वर्ड नहीं उसके लिए ला सक रहा जहन में इस टाइम पे, उसके लिए पिक एंड चूज करना कि विच न्यूज using these kind of Photoshop tools and graphic designing tools and too many applications out there, and even kids can use those things। बल्कि एक एप्लीकेशन थी, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, मेरे बेटे ने मुझको उसमें एक क्लिप बना के दिखाया। वो जनाब बराक ओबामा मेरी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है आके कि यू हैव टू बाय थिंग्स फ्रॉम सर्टेन कंपनी। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या, और इट वाज सो रियल, इट वाज सो रियल। तो हाउ कैन वी गो अबाउट इट एंड व्हाट कैन बी डन? मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल इशू राइट नाउ, व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव, स्पेशली लिविंग इन द era of social media and speed of social media। It's really really very difficult and for the kids उनके लिए ये बहुत चीज मुश्किल हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया, नो वन ओन्स द न्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन इज द ओनर ऑफ द न्यूज। बहुत मतलब रेयरली बैक ट्रैक करके उसको चेक किया जाता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, अनलेस अनटिल। और मतलब ये जो डिफरेंशिएट है, इसमें क्या हमें करना होगा कि इस जगह पे हम इसको फिलअप करें? काइंडली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जी जरूर जरूर। ऐसा है कि मैं कुछ अमेरिकन जो है उनको क्रेडिट दूंगी, बिकॉज इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। जितने भी उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक अफ्रीकन प्रोवर्ब जो है वो शेयर करना चाहूँगी। it goes like, until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter। इसका मैं आसान तर्जुमा यूँ करूँगी कि जब तक कि शेर जो है वो अपनी कहानी बयान करना नहीं सीखेगा, तब तक हर कहानी जो है वो शिकारी को ही ग्लोरीफाई करेगी और शेर की साइड की जो स्टोरी है वो हमें नहीं पहुंच सकेगी। So आजकल के दौर में hundreds and billions of dollars are actually being spent to control the public mind। जो लोग हैं जो उनकी जो है ताकत है, उसका बेसिकली आजकल हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। और जिन चंद लोगों को अवाम की ताकत का अंदाजा है या लोगों की ताकत का अंदाजा है कि पीपल ओपिनियन जो है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, तो तब तक वो हमारे जहनों के साथ खेलते रहेंगे, इस सारी चीज़ में हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हमारे साथ जो है वो हमें वर्गलाते रहेंगे, बहलाते रहेंगे। सो एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने लिखा कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप्स,
Very rightly said. ठीक है ना? Very rightly. And then they also said that your ignorance is their power. So once we Okay. are ignorant, अच्छा, they are getting powerful either in the form of money, either in the form of all the benefits that they are taking from these fake news basically. So what we can do is सबसे पहले कि किसी भी खबर की सच्चाई को जाने बगैर आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम उसको फौरन शेयर करना शुरू कर दें. So here I'd like to share my example with you. मैंने अपने तौर पे बारिश का पहला कतरा वो कहते हैं ना कतरा कतरा बने समंदर. So अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हुए मैंने ये करना शुरू किया है कि आई हैव स्टॉप्ड शेयरिंग ऑल द न्यूज़ वीडियोस जो आती है मेरे पास एडिटोरियल्स या कोई भी चीज़ मेरे साथ शेयर होती है. आई डू नॉट शेयर इट विद माई कॉलीग्स विद माई फ्रेंड्स इन माई ग्रुप्स देयर एंड देन. I need to make sure that this information that is reaching me, is it misinformation? Is it disinformation? Is this video has it been edited? Photoshop हुई हुई है? Because इस वक्त हम सब के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी आयद होती है. The government alone cannot do anything. The organizations alone cannot do anything. And I think as an individual, it is our responsibility to make sure कि हम जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जब तक कि हम किसी चीज़ की हकीकत को ना जान लें हम उसको शेयर ना करें. इसकी सबसे छोटी मिसाल मैं आपको भी दूंगी. ये रिसेंटली एक वीडियो आई थी पिछले दिनों जो कि बहुत ही तकलीफ दे थी कि जी एक आदमी जो है वो अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठा रहा है. अब किसी को भी इसकी ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता था लेकिन वो बहुत ही तकलीफ दे चीज़ थी पढ़ने में देखने में. और फिर बाद में उससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें और न्यूज़ आना शुरू हुई. ये पिछले हफ्ते की बात है. तो जब तक कि आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता चलता कि वो कहते हैं कि कौन मजलूम है कौन जालिम है, सो आप तस्वीर का कौन सा रुख देख रहे हैं या आपको कौन सा रुख दिखाया जा रहा है. आई थिंक अल्लाह ने हमें इतना शऊर दिया है, हमें इतनी अकल अता की है. आई थिंक बीइंग अशरफुल मखलूकात हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए और हमें जो है इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करने में और इन सोशल मीडियाज को यूज़ करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है. कई दफ़ा बहुत हसास क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयरिंग उसमें डिसइंफॉर्मेशन का तो वो एलिमेंट था थोड़ा और नहीं भी था. Although it's political and we kind of don't go in politics on this channel, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं उसको हाईलाइट करके पूछना चाहूँगा. अमेरिकन इलेक्शन लास्ट इलेक्शन जो हुए उसमें एक एनालिटिका कंपनी थी इंग्लैंड की जिसको इन्वॉल्वमेंट कही गई कि उसने मैनिपुलेट किया अमेरिका का इलेक्शन. Where we put that kind of thing, is it information disinformation और क्योंकि वो मैनिपुलेशन थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू इंफॉर्मेशन चैनल्स ही हुई थी, तो हम उसको कहाँ रखेंगे इस किस्म के इंसिडेंट्स को. पूरा इलेक्शन में वो कहते हैं पूरा इलेक्शन इंजीनियर्ड किया गया था और दिया. जी जी वही यहाँ पे यही ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन वाली बात आएगी. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट विद अमेरिकन इलेक्शंस, इट्स नॉट जस्ट विद अब हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी देखें. हमारे मुल्क में तो खैर ये एक 5 साल के बच्चे को भी पता होगा कि हर साल जो हमारे हर 5 साल बाद या 2-3 साल बाद जो भी कोई इलेक्शंस होते हैं वो हमेशा रिग करके उनके जो नताइज हैं उनको रद्द कर दिया जाता है. It's not just elections. I think it's our exam results as well. It's related to everyday day-to-day matters में अगर हम देखें तो at times promotions को और different organizations में लोग promotions को भी rigged कह देते हैं कि जी फलाने के पास सिफारिश थी, ये तो मेहनती नहीं था बंदा और ये सिफारिशी था, या इसने कोई रिश्वत चलाई होगी, या ये एक हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है. आई थिंक वी नीड टू ब्रेक थ्रू दिस थिंग. और ये जो अमेरिकन इलेक्शंस को रिग्ड और ये जो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ फैलाई गई थी वो बेसिकली वही पे बात आ जाती है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत मैटर करती है. लोग क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं और लोगों का क्या ट्रेंड बन रहा है. So to develop all these trends and to make sure कि उस पूरी कंट्री की जो नॉट जस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो उसकी डायनामिक्स है उसको भी डिस्टॉर्ट करने के लिए इस किस्म की फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट आजकल के दौर की ये बात नहीं है.
ये अगर हम देखें तो जो हमारी पाकिस्तान मूवमेंट है, जब व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू द सब कॉन्टिनेंट एंड इवन बिफोर दैट जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, हम जितना भी हिस्ट्री में पीछे जाएं तो ये कोई आज के दौर की बात नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ये सदियों से चली आ रही है और ये किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। इसको रोकने का सिर्फ जो एक तरीका है वो है टू क्रिएट अवेयरनेस। लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों में इस चीज़ का शऊर बेदार किया जाए कि जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके इर्द गिर्द के ही मौजूद जो है लोग वो ये फैला सकते हैं। अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे देखें तो इवन घरों में ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जिसको हम बड़ा कॉमनली सास बहू की लड़ाई झगड़े या जो है और भी इस किस्म की जो फैमिली पॉलिटिक्स होती हैं, इसमें भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। और आई थिंक हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अपने तमाम जो है अपने सेंसेस को, अल्लाह ने हमें जो शऊर और जो हमें सेंसेस अता किए हैं, आई थिंक हमें उनको शट डाउन करने की बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। एंड वी नीड टू मेक श्योर टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। We need to be more empathetic towards people. We need to make sure कि हमें सिर्फ एक साइड की बात सुन के और अपनी ओपिनियन उस चीज़ के ऊपर बेस नहीं करनी है कि हमें अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ अपनी सिंपथीज नहीं रखनी है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ या रशियन गवर्नमेंट के साथ या अपनी जो अगर हम अपने कंट्री की भी बात करें तो हमें सिर्फ अपनी गवर्नमेंट या अपनी अपोजिशन या अपने नज़रियात जो हैं वो इर्द गिर्द के लोगों पे नहीं थोपने हैं। I think वो जो एक बात कही जाती है live and let live, so let people develop their own opinions, let people experience their own experiences, and we should stop influencing them. So this is all about influencing people's opinion, their matter, और जो political situations हैं they are mostly linked to economic situations as well, social situations as well. So वो तो एक entirely different discussion है, उसके ऊपर तो I think अगर हम discuss करना शुरू करें तो it's a very interesting topic in itself. मैं इसीलिए मैं कह रहा था हम पॉलिटिक्स को इधर टच नहीं करते, लेकिन ये एक सिनेरियो सामने आया था यूएस इलेक्शन के बाद, काफी इसके ऊपर मतलब ले दे हुई थी कि फेसबुक एनालिटिक्स को यूज किया गया और इनको बैक चैनल्स को यूज किया गया इसको इलेक्शन को इंजीनियर करने के लिए। तो मतलब करंटली जो हम देख रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी ने ऑलरेडी एवरीवन ऑलमोस्ट नोज के अपने सोशल मीडिया सेल्स बना लिए हैं, अपने अपने उनको लेके चल रही हैं और वो मतलब इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन दोनों ही फैला रहे हैं, गुड एंड बैड दोनों ही वो कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट टू मेक देयर ब्रांड पॉपुलर वो अगले को वो नीचे करते हैं, अपने ब्रांड को ऊपर करते हैं पॉलिटिकली। सेम वे अगर आपने देखा हो कोक के एड्स, पेप्सी के एड्स, वो मतलब उसको इस तरीके से शो किया जाता है कि कोक इज बैड एंड पेप्सी इज गुड। ये मतलब इस किस्म के डिसइंफॉर्मेशन इसको इस चैनल को मार्केटिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है आजकल के दौर में। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। हाँ, नेस्ले वाटर एंड दिस वाटर्स को रख के उनको वो एनालाइज करके अच्छा बॉक्स वो जूसेस में से क्या कीड़े निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग कि नेस्ले के जूस में से कीड़े निकल रहे हैं। और अब वो रियलिटी भी है उसमें, कहीं पे रियलिटी होती है कहीं पे फेक होता है। तो उस जगह पे मतलब काइंड ऑफ बड़े डेंजरस स्लाइड वी आर वॉकिंग ऑन, कहते हैं ना कि वेरी थिन डोर, बड़े पतले तार के ऊपर हम वॉक कर रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर कि किस साइड पे हमने जाना है हमें नहीं पता होता। तो इट्स बेटर नॉट टू शेयर दैट काइंड ऑफ न्यूज। मेरा ख्याल में जो आपने कहा ना कि बहुत अच्छी चीज यही होगी कि उसे शेयर ना किया जाए। जी, मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि एक मैंने पोस्ट देखी, उसमें लिखा हुआ था कि अराउंड 1500 न्यूज़पेपर्स, 1100 मैगजीन्स, 9,000 रेडियो स्टेशंस, 1500 टीवी स्टेशंस एंड 2400 पब्लिशर्स, ये अमेरिका की बात है, आर ओन्ड बाय ओनली 3 कॉर्पोरेशंस। ठीक है ना? So exactly. Those 3 corporations are making sure to confuse people basically. आम आवाम में को जो है उनको उनके मकसद से, उनकी जिंदगी के मकसद से एक हटाने के लिए
उनमें डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, अब जिस तरह ये जो आपने पेप्सी और कोक की और ये डिफरेंट ये ब्रांड्स की बात की, ये ब्रांड्स की तो वॉर के ऊपर और इस चीज के ऊपर तो आई थिंक हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया का अब असल मकसद ये रह गया है कि वो हम लोगों को ये तासुर देते हैं कि हम जो जिंदगियां जी रहे हैं हमें उससे सेटिस्फाई नहीं होना। अगर आपके पास लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को किसी लेटेस्ट रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकते, अगर आपके बच्चे एलीट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, या आपके पॉश लोकेलिटी में घर नहीं है, या आप जो है वो फॉरेन कंट्री में अपनी वेकेशन गुजारने नहीं जा सकते या नॉर्दर्न एरियाज नहीं जा सकते, तो आप एक नाकाम इंसान हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और या आप खुश नहीं रह सकते, या आपकी खुशियों का ताल्लुक जो है वो इन तमाम दुनियावी चीज़ों से या इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इन लाविश चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बल्कि अगर देखा जाए तो हकीकत इसके बरक्स है कि ये जितने भी बड़े 5 स्टार और 7 स्टार्स होटल है, अगर आप उनका जाके खाना खाएं तो आई थिंक आप उनकी एक चपाती से ज्यादा आप नहीं खा सकते। एंड वेयर एज अगर आप किसी ट्रक होटल में जाके बैठे तो आपका पेट ही नहीं, दिल ही नहीं भरेगा कि आपका हाथ नहीं रुकेगा खाने से। सिमिलरली अभी जो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। लास्ट 3 मिनट्स आर रिमेनिंग, हमारे पास एक 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, मैं क्विकली रीड कर देता हूं, अगर कोई आप उसमें आंसर कर दें, कुछ मैं आंसर कर देता हूं। एक है ये सरफराज सरवर खान साहब, ही इज आस्किंग ऑन आवर फेसबुक पेज, आर यू ग्रेट सर्विस you are providing, are you guys offering internship for newly graduate students of management sciences? Safraz साहब, ये इसका आंसर मैं दे देता हूँ। Currently APSS is not offering any kind of internship or anything. APSS एक volunteer organization है और उसके में कोई फिलहाल हम लोग ने इस किस्म का प्रोग्राम नहीं शुरू किया। मरिया, प्रॉक्सिमो की तरफ से कोई इस किस्म का इंटर्नशिप का प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं जी, हमारे पास इंटर्नशिप का प्रोग्राम नहीं है, बट वी डू रन ट्रेनिंग, जिसमें कोई इंडिविजुअल इन ट्रेनिंग कोर्सेज में से अपनी नॉलेज के लिए कोई कोर्स करना चाहता है, तो फिर जो हम वैसे इंडिविजुअल कोर्सेज नहीं रन करते, लेकिन जब हमारा कोर्स रन हो रहा होता है तो फिर हम आपको डकटेल करके उस कोर्स में इन्विटेशन भेज देते हैं, और जिस भी शहर में वो आपके नियरेस्ट शहर में हो रहा हो तो वो फिर हम आपको उस कोर्स का हिस्सा बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शहरियार मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम स्पीकर्स। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार मलिक साहब, वेरी वेल सेड मिस मारिया, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं मारिया वो इस जगह पे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। ये असल में इन्होंने जिस टाइम पे पोस्ट किया है उसके बाद आपने उसको कवर अप कर ही लिया था मारिया। अगेन एक हल्का सा जी, मैं इसको दोबारा, हाँ जी जी जरूर। इस पे जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तारीफ का। इस पे सबसे पहले ये है कि आप ये देखें कि आपको वो इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से आई है। सो आपको अपनी सोर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको किसी भी वाक़े की रिपोर्ट है मिल रही है किसी वाक़े से मुतालिक या किसी और चीज़ से मुतालिक, तो आप कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी रिप्यूटेबल चैनल से अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो डेफिनेटली ऑथेंटिक होगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है किसी व्हाट्सएप ग्रुप से या फेसबुक ग्रुप से, तो मेहरबानी करके पहले उसके बारे में तस्दीक कर लें और उसको शेयर मत करें। आप अपने बिहाफ पे ये ज़रूर अवेयरनेस जनरेट मैं करना चाहूँगी कि प्लीज़ शेयर करने से पहले जब तक तस्दीक ना हो उसको शेयर ना करें, और जितने भी ऑफिशियल स्टांसेस होते हैं वो हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। In the end, I would like to thank Major Ali, सैयद अली और मरिया फरोख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉक्सिमो का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने हम लोग को APSS के साथ ताउन किया और हमारे ऑडियंस के लिए इतना अच्छा एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए। It was beautiful session, quite a bit of information, learning, knowledge, everything. और मैं अपने तमाम APSS के मेंबरान और अपने तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपका थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको कवर किया। थैंक यू वेरी मच मारिया, एंड आई विल से बाय टू यू फ्रॉम हियर।
Thank you. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. ओके व्यूअर्स, आज के लिए आज का इंतहाई इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक ख़त्म हुआ और इट वाज क्वाइट लर्निंग, और मेरे अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी इजाफा हुआ, काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ कि हम कैसे फास्ट फॉरवर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में जैसे ही कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो कितनी फेक भी होती है बीच में। और हमको इसलिए इससे बेहतर है कि हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करें, अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट सेशन हमारा बड़ा खूबसूरत और दिल कश होगा, और हमारा नेक्स्ट सेशन 14 अगस्त को 14 अगस्त पाकिस्तान डे है, और हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत होंगी, और आप लोग रियली इंजॉय करेंगे उस सेशन को, और बहुत लर्निंग होगी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के टूरिज्म के बारे में। आई एम नॉट डिक्लेयरिंग हिज नेम राइट नाउ ऑन द सेशन, वो आपको उसके लिए वेट करना होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, and do log in to APSS Live Friday. Allah.